सुकून की तलाश में पहाड़ों की ओर खामोशी में बसी है मन की एक दौड़। हर कदम पर महसूस हो प्रकृति का जादू, सूरज की किरणों में बहे प्रेम का शोर। स्वागत है आपका मुसाफिर इंजीनियर्स के साथ स्टे संवाद सीरीज का एपिसोड 1, जहां हम बात करेंगे होटल स्टेज के बारे में। और आज का हमारा होटल है सिल्वर फॉन। और ये व्यू काफी पीसफुल है, काफी सुकून है, मेन सिटी की हसल बसल से काफी ज्यादा दूर है। तो आइए मिलते हैं सिल्वर फॉन होटल के ओनर से। नेम Karan Gangola. So what was the thought behind this property? So basically, as I told you, I have stayed in Delhi. I've seen the hustle bustle. I've seen the struggle, basically, right? So I wanted to get away from that, and this was one place. When I came to this place, it was peaceful. It was, it's not commercialized yet. So that was the reason I thought, यार यहाँ पर कुछ चलाया जा सकता है. And basically, post-COVID, everybody wanted a place where they could have some peace of mind. Right. So this is what we came up with, and it's a place where you can come, enjoy with your family, or for work-related things. We've got Wi-Fi, everything. So yeah, basically we cater to all such customers or guests you can call. Right. And adding to one more thing, what the owner of this property mentioned, this property is really amazing. The staff is really amazing, and on demand request हम कुछ भी करते हैं या कुछ भी मतलब उनको रिक्वेस्ट करते हैं, let's say bonfire or maybe to arrange some speakers and some projectors, and even they will help us they will teach us about the Kumaon food. So that is a really interesting thing. And so what was the thought behind this cooking class? So I wanted to promote Kumaoni culture. I am from Kumaon. I have been to all parts of India. I see that people really, are strongly connected wherever I go. Even if I go to places like Himachal or maybe Kashmir or any place, they are really connected, and they, really want to show their culture. So मैंने कहा हमारा भी होना चाहिए. And you see the rooms also. The names are of the flora and fauna of Kumaon. तो ये बेड़ू है जैसे this one. Yeah, I basically wanted to know the reasons behind these names. Yeah, these are basically flora and fauna. Basically आप जो फल होते हैं, पेड़ होते हैं कुमाऊं के, तो वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको पेड़ों के नाम दे रहे. Now, as I said, it's a new property. We'll be personalizing each room according to that. तो उसी को according थोड़ा सा उसका fruit हो गया या tree हो गया जिस तरीके से है, we'll be modeling the rooms accordingly. Later stage. Nice. So that is why I wanted that Kumaoni cuisine है. खाना लोग बहुत कुमाऊनी खाने की ज़्यादातर लोग जो भी आते हैं उनको रायता पता है या फिर हमारा मटन अच्छा होता है वो पता है. बट द अदर थिंग्स लाइक भटकी चुड़कानी, छछिया, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इफ यू स्पीक टू द शेफ ही विल बी बेटर equipped to tell you more about it. So that is why I wanted to show this, because my main inspiration was Jaipur. जब मैं गया था तो वो चौकीदानी वगैरह होता है ना, तो basically that was something which we wanted to do, but obviously starting from a nascent stage तो थोड़ा time लगेगा. So as you have mentioned, अभी काफी beginner stage है, right? So in at what time or in which year or maybe in which month of this year ये property कब start हुई थी? So we started in April this year. This April 2024. 2024. And it was, अगर एक तरीके से देखा जाए, everybody has financial crunches और वो सारी चीजें हैं, तो वो हमारा भी साथ भी वही इशू था स्टार्ट करते टाइम. And now slowly and steadily we are picking up. तो उसी वजह से हल्के करके आई एम ट्राइंग टू डेवलप थिंग्स. तो एक बार जितना हो सकता था बेसिक चीज़ें, मिनिमलिस्ट चीज़ें हमने कर दी हैं. नाउ व्हाटएवर इज एन ऐड ऑन विल हैपन अकॉर्डिंगली एज वी ग्रो. मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि हमें ये प्रॉपर्टी बेसिकली मिली मेक माई ट्रिप से. हम बेसिकली मैं जब प्रॉपर्टी सर्च करता हूँ, मैं वहाँ पे फिल्टर 4.2 मैक्सिमम रेटिंग का वो होता है, मैं 4.2 प्लस ही सर्च करा था. और ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आई थिंक 27 रिव्यूज थे जो सारे ही 5 स्टार थे, और सब ने ही खाने की बहुत तारीफें की थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा. मेन तो मेरे को लगता है खाना ही है, बाकी सब चीजें बंदा एक बार को खाना और लेकिन खाना इज अ मेमोरी टू पीपल. खाना एंड देन मेरा एक क्राइटेरिया रहता है, whoever books with me, I am very transparent with them कि भाई ये जगह है, नैनीताल से इतनी दूर है और आपको ये चीजें मिल सकती हैं. उसके अलावा जो चीज होगी, अगर कोई चीज नहीं अवेलेबल है तो नहीं. दैट इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि गेस्ट पहले से भी उससे आ जाता है, तो उसके बाद उसको कोई चीज में ऐसा नहीं लगता, कमी नहीं लगती है. सो व्हाटएवर वी कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा देन इट्स ओके. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आई ओवर प्रॉमिस और एनीथिंग. सबका जैसे अपना टेस्ट होता है, किसी को बिल्कुल पीसफुल टाइप स्टे चाहिए, नैनीताल की हसल बसल, और आजकल जैसे हर हिल स्टेशन बहुत क्राउडेड हो चुका है और वो वहाँ पे रहो, और बिल्डिंग वाले होटल्स होते हैं ऊपर से नीचे लेयर्स में,
तो किसी को उससे थोड़ा एस्केप चाहिए। एग्जैक्टली, तो मेरा कहने का मतलब वही है, जो कस्टमर पहले ही बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं मार्केट और ये, मैं कहता हूँ ये आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, फिर ये नहीं हो सकता कि मैं आपको मार्केट भी यहीं पर दे दूँ या कुछ, ऐसी चीज़ें नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। जो इसके पीछे आइडिया ही है वो यही है कि आदमी आए तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के लिए आए, वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो चीज़ें कमर्शियलाइज जगह पे मिलेंगी। Right. And with this, like, I would like to end this short podcast with a short note. Like, maybe आपको मार्केट मिले ना मिले, लेकिन माइंड का पीस और मन का सुकून जरूर मिलेगा। मार्केट के लिए हम यहाँ मत आना, बट मन के सुकून के लिए डू विजिट द सिल्वर फन खुरपा ताल। हमने यहाँ के नाइट्स और डे के शूट ऐड किए हैं और रूम टूर भी लिया, वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे इस वीडियो पे। Thank you to both of you for coming and being part of our family. So Thank you. It is like being family. When you come here once, I hope you come back again and again. Yeah, surely we will recommend to our friends also. तो गाइस, अभी हम मिले थे सिल्वर फन के ओनर से, एंड नाउ वी हैव मिस्टर नीरज, द मैनेजर ऑफ सिल्वर फन। तो नीरज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बस एकदम बढ़िया। तो लाइक, कैसा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी को मैनेज करना, और आपको कैसा लगता है? आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मेरा नाम नीरज है और मैं यहीं से रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, इस बार ये फर्स्ट सीजन था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पीसफुल एरिया है और हर किसी जो भी गेस्ट आते हैं तो हिल्स में उनको चाहिए होता है कि थोड़ा सा पीसफुल एरिया हो, ग्रीनरी हो और थोड़ा नेचर के बीच में हो, तो शांति चाहिए होती है, इसलिए तो प्रॉपर्टी को उनको अच्छा लगता है यहाँ पर आना और स्टे करना। तो आप हमें बताइए कि इस प्रॉपर्टी में क्या क्या फैसिलिटीज है जो आप हमारे लाइक व्यूअर्स और आपके लाइक पोटेंशियल गेस्ट, तो उनको पता चले कि क्या क्या फैसिलिटीज है आपकी प्रॉपर्टी में। ये फैसिलिटीज़ हमारे पास एक तो फुल पार्किंग स्पेस है हमारे पास और रूम्स में एमिनिटीज़ सभी हैं लगभग, और यहाँ पर हम उनको आउटडोर गेम्स भी कर सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है और क्रिकेट है और टीम बिल्डिंग गेम्स भी कर सकते हैं। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कुछ हैं यहाँ पर आउटर एरिया में, वो भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर ट्रैकिंग भी करा सकते हैं हम, और लेक में नेचर वॉक करके वो भी ले जा सकते हैं हम। ट्रैकिंग का तो मैं वापस अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगी, काफी ही प्यारी ट्रैक थी और हमें नीरज जी ने ही सजेस्ट करी थी। तो नीरज जी यहीं पे रहते हैं, सामने उनका घर है, हमें उनका घर भी यहाँ से दिखता है इवन। तो नीरज जी यहीं पर रहते हैं, नीरज जी ने ही हमें वो ट्रैक सजेस्ट किया था। तो नीरज जी, हमें एक चीज आपसे जाननी है कि जो ये जगह है ये नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर है जी। तो कोई गेस्ट जो है वो नैनीताल में ना रह के इस प्रॉपर्टी में क्यों रहे? ऐसा क्या खास है इस प्रॉपर्टी में? देखिए, नैनीताल में अब क्या हो गया, पहले तो ग्रीनरी थी बट अब वो धीरे धीरे ग्रीनरी खत्म हो रही है और काफ़ी मतलब रश बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पर, मतलब होटल्स काफ़ी ज़्यादा बन गए। तो हर किसी गेस्ट को चाहिए होता है कि हम शहर से थोड़ा सा, भीड़ भाड़ से दूर, थोड़ा सा जहाँ पीसफुल एरिया वहाँ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर रहना लोगों को पसंद है, तो थोड़ा सिटी से हटके यहाँ पर लोग आते हैं रहने के लिए। तो नॉर्मली लाइक जब भी आपको कोई फोन करता है कि क्या ये प्रॉपर्टी में लाइक रूम्स अवेलेबल है, तो उनके ज्यादातर क्या क्वेश्चंस होते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में? कि जैसे अभी हमें ओनर बता रहे थे इस प्रॉपर्टी के कि लोग पूछते हैं कि क्या आसपास मार्केट है, तो ओनर मना कर देते हैं कि मार्केट नहीं है लेकिन मन का सुकून जरूर है। हाँ जी, है ना? तो ऐसे और क्या क्वेश्चंस होते हैं जो आप हमारे दर्शकों को आंसर करते हैं? देखिए, मेनली वही क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब आपके पास पार्किंग है और रोड इजीली प्रॉपर्टी तक आ जाती है, तो ये सब छोटी मोटी क्वेरीज रहती है। या तो मतलब टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, काफी ही अच्छी प्रॉपर्टी है एंड इवन स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, काफी हेल्पफुल है और कभी भी कुछ भी पूछो, कुछ भी मांगो तो बेझिझक बताते हैं। और इवन लाइक हमें तो ऐसा लगता है कि अब वो हमारे परिवार वाले ही बन चुके हैं सब लोग, नीरज जी, यहाँ के ओनर, बाकी सारा स्टाफ। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोई नई जगह पर आए हैं, हम उनसे बैठ के मस्ती मजाक कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। और स्पेशली टॉकिंग अबाउट कोई भी प्रॉपर्टी, तो इंसान सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का खाना देखता है ना? तो अब हम आपको मिलाएंगे इस प्रॉपर्टी के कुक से। तो सर है हमारे इस प्रॉपर्टी के कुक, काफ़ी ही प्यारा खाना बनाते हैं, काफ़ी डिलीशियस, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे बाहर का रेस्टोरेंट का आम खाना खा करके हमें लगता है कि काफ़ी हैवी हो गया, अब पचेगा नहीं या पता नहीं अब क्या हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इवन हमने तो आज सवेरे 4-4, 5-5 पराठे पहले सवेरे, तो बहुत ही प्यारा खाना लगता है, बिल्कुल हैवी नहीं लगता। तो क्या राज है आपकी इस कुकिंग का? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने हेल्थ को, जैसे अपने हेल्थ आज के डेट में अपने हेल्थ को सब कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यार हम बीमार ना पड़े बाहर का खाना खा के, कहीं ऐसा ना हो, गैस ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो मैं घर के स्टाइल से जो है अपना खाना तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं आज से 14-15 साल महाराष्ट्र में रहा हूँ,
तो जैसे महाराष्ट्र के गेस्ट भी आए थे पिछले जो सीजन में, तो उनको भी बहुत पसंद आया था कि खाना यार महाराष्ट्र का खाना यहाँ मिल रहा है। तो हम अपने कुमाऊनी स्टाइल में उनको खाना खिलाते हैं कि ना ऑयली कम होता है, हेल्थ को देखते हुए, और मसाले हम अपना जो नॉर्मली घर के ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और कुमाऊनी खाना की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक खाना रहता है हमारे पास। तो जैसे आपने बताया कुमाऊनी खाना के बारे में, तो क्या स्पेशल डिशेस है कुमाऊनी खाने की? जैसे हम इसमें यहाँ देते हैं मैम, कुमाऊनी रायता है, भटकी चुटकानी है, और कुमाऊनी जो लाई होती है, एक तो लाई के जो पत्ते होते हैं फैले हुए, लेकिन जो यहाँ की जो लाई होती है एकदम विदाउट केमिकल, विदाउट पेस्टिसाइड्स की होती है। तो उसका जो टेस्ट होता है, यानी कि आप उसको आप कच्चे पत्ते भी खा सकते हैं उसके, और उसमें आयरन, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो आप हमें खाना खिलाते हैं, क्या सिर्फ उसमें मसालों का राज है या आपके हाथ का प्यार है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, अब दिल खुश हो गया, अपने दिल से बनाते हैं तो अच्छा बन जाता है, ऐसा तो कोई खास बात तो किसी की उसमें नहीं होती है। मसाले में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, खाली एक तरीका होता है कि कैसे बनाना है, कितना मसाले डालने हैं, कम डालने, ज़्यादा डालने। ज़्यादातर लोग मसाले कम ही खाते हैं आज के डेट में, अपने सेहत को देखते हुए। बिल्कुल, सेहत तो सबसे ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम लोग आजकल लाइक सबका बैठने का ज़्यादा काम है, लैपटॉप पे सिटिंग का ज़्यादा काम है, तो इसलिए हमको सेहत का खासकर ध्यान रखना चाहिए, और हमें हमारी डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए, प्लस हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। जैसे कि आज हमने ट्रैक करा, तो मे भी मैं बार बार मेरा ट्रैक फ्लेक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहला ट्रैक है। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे होटल के स्टाफ को। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? शोभननाथ गोस्वामी है। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। अच्छा। जिला अल्मोड़ा पड़ता है। मैंने 12 साल होटल मनु महाराज में किया था। 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और अभी मैं साथ की नई प्रॉपर्टी में आया हूँ। 1 महीना हो चुका है मेरे को सर्विस बेटर में हूँ। तो आपको कैसा लगता है सुकून वाले? बहुत अच्छा सुकून है, एकांत है, बहुत सुकून है, और शांत वातावरण है, और बहुत अच्छा फैमिली एकांति के लिए बहुत अच्छा है। तो लाइक जब भी कोई गेस्ट आपको बोलता है कि भैया ये कर दो, भैया वो हो जाएगा, तो फिर आपको कैसा लगता है कि सब आपसे ही मदद मांगते हैं, आप सबकी मदद करने के काबिल है? हमें ये लगता है कि कोई हमारे सेवा दे सके, किसी हेल्प हम कर सकें, इस सेवा के लिए हम आए हैं। काफी अच्छा लगा हमें आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू, काफी अच्छा स्टे था, काफी अच्छी प्रॉपर्टी हमें लगी, और सबसे खास बात यहाँ के लोग, जो आप लोग हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी को और खास बनाते हैं। क्योंकि कई जगह क्या होता है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, हम 5 स्टार होटल्स में जाए, हम कहीं पे भी जाए, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बट हम इंसान जो है वो मतलब प्यार का भूखा है ना। तो अगर कहीं पे प्यार नहीं मिलेगा तो कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी हो, चाहे 5 स्टार हो, स्विमिंग पूल हो, और कहीं पे भी हो, तो बिना प्यार के, बिना इंसानों के कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। तो थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में रहवाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।